Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho,
Jaya Jaya Shiva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Shiva 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 Shambho Shiva 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 Shambho Shiva 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 Shambho Shiva 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 Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Mahadeva Shambho. Good morning, everybody. Dr. Sani. Yes, nice to see you all. Today is not a webinar. Today is a meditation, hum meditation session, only for 10 or 15 minutes. But before starting the meditation session, just have a quick check on my video and audio. If it is clear, write in the chat box C. If my video is clear, my voice is clear, write C in the chat box. Come on. Yes, thank you, Shiv Shankar ji. Yes, Rajesh ji, Isha ji. Nice. My video voice is clear. Thank you. Yes. Just have a brief introduction. आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? Yes, write in the chat box, please. Yeah, write in the chat box, Divanshu ji. Yes. गुलरूप जी, क्या महाराष्ट्र से, लखनऊ से. Yes, very good. उत्तर प्रदेश से, okay, very good, nice. So nice of you. थाने से, nice. Yes, I am Dr. S.P. Sani. Basically, I am an ENT surgeon, and we are running a ENT hospital in Gwalior, Madhya Pradesh. And this is my passion. I am doing. This is a share and care scheme of our hospital. We have also a website. So just starting the meditation,
before meditation, I want to explain you meditation. We will start our session by gratitude prayer. Just have a patience, थोड़ा पेशेंस रखें, प्रेयर करते हैं, उसके बाद अपन वेबिनार की बात करते हैं. तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे. जिस गुरुदेव ने जन्म दिया है, उनका मंगल होए रे. जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे. पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे. इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे. जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे. अंतर मन की गाठी सूते, अंतर निर्मल होए रे. राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे. शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे. इस धरती के सरसिज में कर में धर्म समोए रे. शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे. तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे. अभी तक आप सभी लोग मेडिटेशन जरूर कर रहे होंगे, कुछ रेगुलर कर रहे होंगे, कुछ कभी कभी कर रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे. जो रेगुलर कर रहे हैं वो R लिखें, जो कभी कभी कर रहे हैं वो R2 लिखें, और जो अभी सोच रहे हैं वो T लिखें, थिंकिंग T लिखें. हार्ट टचिंग प्रेयर, थैंक यू. ये प्रेयर का भी क्या है, प्रेयर के से मिरेकल होता है, ये आप लोगों ने सुना ही होगा. R रेगुलर, ओके. R2 ओके, कभी कभी. किशन सिंगल जी, कोई बात नहीं. और कोई अभी कोई सोचने वाला भी है जो नहीं कर रहा हो? यस, R2 यस यस यस, ओके. तो आज जो मेडिटेशन तो थोड़ा सा 10 मिनट का ही है, वो पर करेंगे. पर क्या है कि एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक कहानी से अपने इस सेशन की शुरू करते हैं. एक बार एक अखबार में ऐड आया कि एक 25 रुपए का ऐसा खिलौना है जो बिना बैटरी के चलता है. कोई किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी उसको बजा सकते हैं, अंधेरे में, लाइट के बिना, जैसे भी.
और उसकी कीमत मात्र 25 रुपए। तो मित्रों, आप विश्वास करें कि पूरे वर्ल्ड से लोगों ने 25 रुपए का मनी ऑर्डर कर दिया, वो पार्टी के पास करोड़ों रुपया पहुंच गया। लोग अपने उस यंत्र इंस्ट्रूमेंट की इंतजार करते रहे कि कब आएगा। जैसे ही आया, लोग बड़े खुश हुए। लोगों ने खोला और देखा कि वो बच्चे का एक झुनझुना आ गया। बात सही है, झुनझुना बजता भी है, सीखने की जरूरत भी नहीं है, जंगल में भी बजा सकते हैं और घर में भी बजा सकते हैं। मित्रों, बिना मेडिटेशन के साइंस को जाने, मेडिटेशन के झुनझुने खरीद के बजाना मेडिटेशन रिलैक्सेशन नहीं होता है। इसलिए आज आप लोग बड़े ब्लेस्ड सोल्स हैं जो इस नॉलेज, साइंस बिहाइंड मेडिटेशन क्या है उसको समझेंगे, और उसको समझ के जब आप मेडिटेशन करेंगे तो रियली वो वर्क करेगी, तो आपको आनंद आएगा। डिटेल में तो मैं धीरे धीरे बात करूंगा। तो साइंस ऑफ मेडिटेशन क्या है उसको समझ के करें। रियली आप लोग काफी ब्लेस्ड सोल्स हैं, क्योंकि ऐड तो पूरे सब जगह जाता है। आप लोगों को प्रेरणा मिली है तो आप लोग ब्लेसिंग ऑफ गॉड की वजह से ही यहाँ आए हैं। क्योंकि जब आदमी को नॉलेज होती है, जब भी आदमी के अंदर फीलिंग्स आते हैं, और जब आदमी के अंदर फीलिंग्स आते हैं, जब भी उसके एक्शंस अच्छे होते हैं, और जब एक्शंस अच्छे होते हैं तो उसके रिएक्शंस भी अच्छे होते हैं। तो साइंस क्या है, बड़ी सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अपना ये जो ब्रेन है, जिसको कि अपन मैटर बोलते हैं, अपना जो ये बॉडी सोल ब्रेन कॉम्प्लेक्स की बात तो हम बाद में करेंगे। आज तो सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगा कि आप मित्रों देखें कि अपने मन में एक विचार आता है, एक विचार आता है और फिर दूसरा विचार आता है, एक विचार आता है, दूसरा विचार आता है। तो उन दोनों विचारों के बीच में क्या होता है, राइट इन द चैट बॉक्स आप लोग क्या देख पा रहे हैं? एक विचार और दूसरे विचार के बीच में क्या आपको नजर आ रहा है? क्या चीज नजर आती है? टाइम नजर आता है, गैप नजर आता है, क्या नजर आता है? स्पेस, ओके, वेरी गुड। विचार नहीं, विचार के एक विचार के बीच में और दूसरे विचार पे आने में साइलेंस, ओके, साइलेंस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेसिकली ये जो स्पेस है, यही लाइफ है, यही प्राण, इनको ही प्राण बोला जाता है। होता क्या है कि आप जस्ट समझिए कि इस स्पेस एक विचार, देखो क्या है कि अपना जो कमरे में जा रहे हैं, अपना जो मन है, अपना जो माइंड है, वो क्या है कि विचारों का खिलौना हम लोगों को दे देता है, जिससे हम लोग भविष्य की तरफ भागते हैं या भूतकाल की तरफ भागते हैं। पास्ट की तरफ भागते हैं तो अपने को डिप्रेशन होता है, वो आगे की तरफ भागते हैं तो अपने को एंजाइटी होती है। तो उसके साथ भागना नहीं है, उस स्पेस पे ध्यान रख के उस विचार को फिर उस जगह पे वापस लाना है, उस खिलौने के साथ खेलना नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी का वेबिनार तो मेरा 25 को है, वो 25 संडे को है, उसका मैं पोस्टर लगाऊंगा। छोटा सी बात को समझ लीजिए कि अपने जो ब्रेन है, इसके अंदर करंट होता है, हम लोग ईईजी करते हैं, उसमें वेव्स आती है, 3-4 तरह की 5 तरह की वेव्स होती हैं। पहली वेव्स है बीटा वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी 14 से 30 हर्ट्ज रहती है। एक होती है अल्फा वेव्स जो 9 से 13 हर्ट्ज रहती है। एक रहती है थीटा जो 4 से 8 रहती है, और डेल्टा 1 से 3 रहती है। मित्रों, ये अल्फा है, ये समझ लो कि जैसे हाईवे है, अगर आपको दिल्ली जाना है, आपको बॉम्बे से अगर मान लो दिल्ली जाना है, तो कहीं भी आपको अपने डेस्टिनी पे जाना होता है तो आप लोग कोशिश यही करते हैं कि हम जो है हाईवे पे पहुंचे, हाईवे से हम जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये जो अल्फा वेव्स हैं, ये समझ लीजिए कि आपका हाईवे है, और मेडिटेशन जो है इस हाईवे पे तुरंत आपको पहुंचा देता है। यही इसका पीछे साइंस है। तो मित्रों, मेरा कहना यह है कि बीटा वेव, अल्फा वेव, थीटा वेव, डेल्टा वेव, ये तो मैं आपको अपने वेबिनार में जो 25 को है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें जो है मैं आपको
चर्चा करूंगा। अभी तो सिर्फ यही समझ लीजिए कि मेडिटेशन हमको हाईवे की तरफ ले जाता है, और हाईवे पे ही चल के ही हम अपने माइंड को स्विच ऑफ कर सकते हैं। और जब हम माइंड को स्विच ऑफ कर देते हैं, तो हमको माइंड को जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं, तो हमारे जो है अंदर इनर इनर यात्रा शुरू हो जाती है। ये वाली तो जस्ट मेडिटेशन पर पहुंचने के लिए मैं आपको ये मेडिटेशन मेडिटेशन क्या है, कॉशियसली, यही है मेडिटेशन क्या है, कॉशियसली स्विचिंग द माइंड। आप देखिए रात को जब आप थक जाते हैं, तो आपका जो कॉशियस माइंड है वो जो है स्विच ऑफ हो जाता है, वो आपकी एक्टिविटीज सारी चलती रहती हैं, वो आप जो है सुबह डिटॉक्सिफाई मतलब फ्रेश होके उठते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो मेडिटेशन है, ये कॉशियसली स्विचिंग द माइंड है, सो वी कैन ऑब्जर्व ourselves inside ourselves and become better version of ourselves। और दूसरा क्या है, इसलिए मेडिटेशन और रिलैक्सेशन एक ही चीज है। जैसे ये सत्संग है, सत्संग से मेरा मतलब है, सत्संग मतलब सत्संग में जाना नहीं, सत्संग अच्छे लोगों का संग एंड मेडिटेशन आर टू एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी। अगर सत्संग क्या करता है, आपको अंडरस्टैंडिंग देता है आपके नेचर ऑफ माइंड की, कि आपका नेचर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। वो माइंड क्या है, आपको हेल्प करता है अपने माइंड को समझने के लिए और मेंटेन करने के लिए। मोटे शब्दों में आप समझ लीजिए, जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, तो आपके ब्रेन का जो आगे का पार्ट है, जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो डेवलप होता जाता है। ये सब चीजें एक दिन में नहीं हो सकती। जैसे आप जिम करते हैं, तो जैसे ही आप जिम करते हैं, तो आप मान के चलिए कि एक दिन में तो आपकी मसल्स नहीं बन जाती, एक दिन में तो बॉडी नहीं बन जाती। रेगुलर प्रैक्टिस जब करते हैं, तो आपकी बॉडी बन जाती है। तो मेडिटेशन के लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कि जब मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा जो है कॉशियस माइंड स्विच ऑफ हो जाता है, और सबकॉशियस माइंड जिसकी 95% ताकत है, जो कि अपने हाईवे है, उस पे हम लोग चलने लग जाते हैं, और नेम फेम और सक्सेस जो है हमको ऑटोमेटिकली मिलने लग जाती है। एक कहानी से आपको समझाता हूं कि माइंड दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉशियस, एक होता है जागृत मन, एक होता है अजागृत मन। जो अजागृत मन है, उसकी जो ताकत होती है वो 95% रहती है, और जो जागृत मन रहता है, कॉशियस माइंड है, उसकी ताकत 5% रहती है। ऐसे समझ पर है क्या कि जो कॉशियस माइंड है वो इस केस में बॉस है, और जो अनकॉशियस माइंड है, जिसकी ताकत 95% है, वो सर्वेंट है, वो एम्प्लॉयर है। आप कहोगे ये कैसे, पर ऐसा है कि कॉशियस माइंड इंस्ट्रक्शन देता है, एनालिसिस करता है। और जैसे आपने अलादीन के चिराग की कहानी सुनी होगी, जो अलादीन का चिराग है वो कॉशियस माइंड है, तो उसमें से जो जिन निकलता है वो है सब कॉशियस माइंड। जब हम कॉशियस माइंड को घिसते हैं, दिए को घिसते हैं, तो जिन निकलता है। जिन का काम तो सिर्फ यही है कि भाई वो बोले आपकी क्या आज्ञा है आका, तो वो आपकी आज्ञा को तुरंत पूरा करता है। तो मेडिटेशन क्या है, हाईवे पे पहुंचाता है, और सब कॉशियस माइंड को स्टिमुलेट करता है। कॉशियस माइंड को आपके जो है इंटेंशनली जो है स्विच ऑफ कर देता है, जिससे कि ऐसे केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं, तो आप उत्साहित होकर अपनी वाइब्रेशंस बढ़ा सकते हैं, और सारी बीमारियों से सारी नेम फेम और सक्सेस पा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये तो वेबिनार तो है नहीं, मैं बहुत डिटेल में बताऊं, डिटेल में हम 25 तारीख को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। सो हम मेडिटेशन, इसमें क्या है कि पहले सबसे पहले तो आपको पावर पोस्चर लेना पड़ेगा। पावर पोस्चर का मतलब होता है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेट हो, और नेक जो है वो भी स्ट्रेट हो। अगर आप ऐसे बैठे होगे तो नहीं काम चलेगा। जब आप पावर पोस्टर लेते हैं, चाहे कुर्सी में बैठे जिसमें आप कंफर्टेबल है, स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट और नेक शुड बी स्ट्रेट, और दिस चिन इज पैरेलल टू द अर्थ। तो जब आप ऐसा पावर पोस्चर लेते हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये समझ जाता है कि समथिंग इज इंपॉर्टेंट गोइंग ऑन। तो आप सब लोग रिलैक्स होकर
अपनी कंफर्टेबल पोजीशन लेकर अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर लें, चिन को स्ट्रेट कर लें और आईज को क्लोज कर दें, जिससे कि बाहर से विजुअलाइजेशन नहीं हो पाए। और फिर आप क्या करेंगे, इंस्पायर और एक्सपायर। इंस्पायरेशन मतलब आप ये ऐसी ऐसी सांस लेंगे जिसमें कि आपको ऐसा लगे कि मेरे पेट में बैलून पड़ा हुआ है, उसको फुलाना है। तो जब इंस्पायरेशन करेंगे तो मन में ये सोचेंगे सो हम, और मन में सोचेंगे कि हम मतलब जो मैं हूं वो तू है। ये अपने को रियलाइज करना है कि जो परमात्मा की एनर्जी, आप जो परमात्मा में एसेंस ऑफ ब्रह्मांड हमारे अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। तो सो हम मेडिटेशन अब सांसों को लेते हुए हम करेंगे। सब लोग अपनी अपनी पावर पोजीशन ले लें, मैं भी ले लेता हूं, और सोम का जाप 10 मिनट तक करेंगे और सभी लोग रिलैक्स होंगे। उसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा।
Hum. So. 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 Hum. So.
Hum. So. Hum. So. Hum. So. Hum. So. Hum. So. Hum. So. Hum. So. Hum. When you are comfortable, open your eyes. सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं सुबह से काफी व्यस्त चल रहा था। 2 बजे ये सेशन भी था, 2 ऑपरेशन भी थे, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा था। क्या बॉडी के अंदर 2 सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक जो अल्फा रेस, जो बीटा रेस पे चलता है, जैसा मैंने क्या आपको बताया था, जो हर काम एग्रेसिवनेस से कराता है, जल्दी जल्दी कराता है, गुस्सा कराता है, कोई गाली बकेगा तो उसको जवाब भी दिलवाएगा, वो उसको जस्टिफाई भी करेगा, एनालिसिस भी करेगा। ये अपना जो है बीटा वेव्स कराता है। और जब हम लोग रिलैक्स करते हैं या प्रेयर करते हैं तो हमारा जो सिंपैथेटिक मोड से मोड जो है पैरासिम्पैथेटिक में चला जाता है। मतलब हम लोग अल्फा की हाईवे पे आ जाते हैं। जैसे ही हम हाईवे पे आ जाते हैं तो हमारा माइंड ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिनको हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। फिर आदमी को लगने लग जाता है चाल चलो मस्ती में, आग आग लगे बस्ती में। तो आदमी का नेचर ऐसा बन जाता है कि चाल चलो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। आदमी दूसरे की परवाह नहीं करता, वो अपने आप की परवाह करता है। कोई उसको कुछ भी कह देगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सर्विस भी करेगा तो उसकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जब भी मैंने आपको प्रेयर कराई, फिर अब ये सोहम मेडिटेशन किया है, ये तो हुआ मेरा एक्सपीरियंस। अब आप लोगों का एक्सपीरियंस देखो। इसमें मेडिटेशन में शुरू में बोर भी हो सकते हैं। और मित्रों एक बात बताना, जो बोर हुए हैं वो बोर बोलें, जो कंफर्टेबल हुए हैं कंफर्टेबल बोलें, जो रिलैक्स सी लिखें और जो आर है रिलैक्स लिखें। और क्योंकि क्या ये सब चीजें इसमें आएंगी। या जैसे इमेजिन करें कि कोई आदमी हिल स्टेशन पे रहता है तो उसको अपने घर जाना है, तो उसको खाई में भी उतरना पड़ता है, पहाड़ पे भी चढ़ना पड़ता है, पर वो चढ़ता है, उतरता है, घबराता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपने घर जाना है। अगर आपका गोल ये है कि मेरे को डिजीज फ्री होना है, अपनी वाइब्स को बढ़ानी है, अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो मित्रों बोर भी होना पड़ेगा, थॉट्स पे वापस भी लाना पड़ेगा। ये मत देखिए कि थॉट कितने आए, क्योंकि 80,000 आते हैं। ये देखिए कि मेडिटेशन में आपका थॉट गया तो आप उसको कितनी बार वापस लाए। तो अगर आप रिलैक्स हुए हैं, क्या लिखा है ये? रिलैक्स बोलने की हैबिट मेडिटेशन से फर्क पड़ेगा। ये वाइब्रेशंस का एक खेल है। ऋषियों ने भी बोला है और हमारे मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट ने भी बोला है कि हम सब एनर्जी हैं। इस पे चर्चा हम लोग अब कमिंग संडे को करेंगे, 25 को 2 बजे के टाइम पे ही। उसमें एनर्जीज पे बात करेंगे। आज तो समझ लीजिए कि जैसे कोई भी दौड़ के पहले, कोई भी एक्सरसाइज के पहले वार्म अप होता है, ये मेडिटेशन आपका वार्म अप है। अब आप 2-3 दिन आपको जो मिल रहे हैं उसमें ये हम मेडिटेशन करें। और जो आज जैसा आपको इस वेबिनार में लगा हो, आप मेरे को अपने टेस्टिमोनियल भेज सकते हैं, जिससे कि मैं भी इंस्पायर हो सकूं और मोटिवेट हो सकूं अगले वेबिनार के लिए। तो आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो,
तो 3-4 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो मेरे पेशेंट बैठे हैं, मैं देखूंगा। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैं बोलिए। हाँ सर। पहले कहाँ से हैं आप? सर मैं ये एक्चुअली मैं आसाम में हूँ। ओके ओके, बढ़िया। तो मैं एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हूँ आसाम का। ओके। तो इट्स कॉल्ड सिरांग डिस्ट्रिक्ट, नियर टू बंगाईगांव पेट्रो रिफाइनरी। हाँ। ये तो फिर सर मेरा पूछना यही था, जैसे मैं गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ यहाँ का। ओके। तो इसमें जैसे हम लोग का बहुत टेंशन चलता रहता है, हाँ क्योंकि स्टाफ को संभालना है और फील्ड में वो मतलब वो जो हाँ, वो सब चलता है। रहते हैं। तो उसमें जैसे मैं अभी मेरा केबिन में बैठा हुआ था, तो उसमें काफी अच्छा लगा, मेडिटेशन से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसमें सर हम लोग ये जो सोहम का मेडिटेशन है, मैंने पहली बार इसको ये है। लेकिन सर मेरा आपको एक बताना क्या है कि ये 1-1.5 साल पहले, मतलब ये लॉकडाउन के समय में एक दिन मैं सो रहा था, तो रात को मतलब सोते समय मुझे ये जो है ये मुझे मन में आया था ये। तो उसके बाद मैंने चार्ज किया विकिपीडिया में, तो वो सोहम बोल के एक मंत्र है। तो आज ही मुझे इसका कैसे करते हैं उसके बारे में पता नहीं था, तो कहाँ से ऊपर वाला खेल दिखाता है मतलब। देखो, आपके माइंड में देखिए, बेसिकली क्या होता है कि सारा जो सबकॉन्शियस माइंड इज गॉड। हाँ, बेसिकली जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है वो गॉड है, पर वो क्या है कि एनालिसिस नहीं करता, वो तर्क वितर्क नहीं करता। तो मेडिटेशन से अपन लोग सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। आपने अगर जैसे मान लो कोई अपना स्पेसिफिक गोल बना लिया कि मुझे ऐसा करना है, तो आप अगर हर वक्त हाईवे पे चलेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली वहां पहुंचा देगा। आप समझ रहे, कई बार ऐसा जैसे हम वो भाषा कौन सी समझता है, आपकी शब्दावली। आप अपने से भी कोई बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग बोल देते हैं, अरे भाई, जैसे कोई करोड़पति भी होगा, उससे पूछो कि भाई क्या हाल चल रहा है, कैसी चल रहा है व्यापार, वो कहेगा साहब दाल रोटी खा रहे हैं। गलत शब्दावली। जैसे आपने बोला मैं टेंशन में रहता हूं, ऐसा नहीं बोलना है। आपको ये बोलना है कि काम है, टेंशन में स्ट्रेस होती है, अब पर मैं इजी हूं। आप बिजी नहीं, अपनी शब्दावली पे ध्यान रखना है, क्योंकि वो आगे पीछे का चीजें नहीं देखता है, वो वर्ड्स वगैरह नहीं देखता है, वो तो नाउन देख लेता है। और दूसरा क्या है कि जैसे आपने अगर जैसे मान लो आपका ये हाईवे या सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको किसी मास्टर की जरूरत नहीं है, आपको इंट्यूजन होगी सुबह के टाइम पे। अब आप देखिए कई बार क्या होता है कि सुबह के टाइम पे आपको अच्छे अच्छे, जैसे आइंस्टीन है, सपने में उनको जो है डिस्कवरी हुई। जो सुबह के टाइम पे क्या होता है कि वो एक्टिव होता है। वो कई बार क्या है, अपने पुराने लोग भी कहा करते थे कि हर सपने को का निरादर नहीं किया जा सकता। कई बार क्या है, सबकॉन्शियस माइंड सपनों में भी आपको बताता, सपनों में भी आपको बताता है। इसलिए लोग कहते हैं कि सुबह के सपने सच होते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या है कि अपने अंदर डेल्टा वेव्स चल रही होती हैं। ये डिटेल में अपन बात करेंगे। आप अगला वेबिनार मेरा ज्वाइन करिएगा, उसमें आपकी चीजें और क्लियर होंगी। ये तो एक टेक्निक है, ये तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, क्योंकि जो अपनी सांसें हैं वो हर वक्त अपने साथ रहती हैं, कोई माला फेरने की जरूरत नहीं। जस्ट यू हैव टू चेंज योर मूड। जैसे ही आप मोड चेंज करते हैं तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हाईवे पे पहुंचते ही ट्रैफिक खत्म, स्ट्रेस। तो ये अपन उस पर क्या है कि अगली बार और चर्चा करेंगे। तो आप 2 बजे का टाइम निकालिए, मैं लिंक वगैरह सब भेज देंगे आपको, वो पूरा आपका आ ही जाएगा नाम। अभी तो हमारा जो टीम है पूरी आपको भेजेगी। और कोई? थैंक यू डियर। मेडिटेशन किसी भी टाइम कर सकते हैं। कोई पूछ रहा है कब? मेडिटेशन तो हर वक्त करना ही है, आपको मेडिटेटिव माइंड बनाना है भाई। अरे मेडिटेशन के लिए एक इक्वेशन है, A + A = मेडिटेशन। A + A = मेडिटेशन। मतलब A फॉर अलर्टनेस और दूसरा A है अवेयरनेस। अगर कोई भी काम आप होश में कर रहे हैं वो मेडिटेशन ही है। ये सुबह का मेडिटेशन आपके मेडिटेटिव माइंड को बनाने का है। जैसे मान लो आप गिलास का पानी पी रहे हैं, तो आप यही समझ के पीजिए कि गंगा जल पी रहे हैं।
आप जैसे नहा रहे हैं तो समझिए गंगा में ही नहा रहे हैं, और पानी वेस्ट नहीं करना है। लाइट जल रही है तो आप ये समझिए कि ये एनर्जी जल रही है, ये ब्रह्मांड की एनर्जी जल रही है। तो आप जो है उसको वेस्ट मत करिए, उसको बंद करिए। तो आपका जब माइंड मेडिटेटिव हो जाता है, उसके लिए ये मेडिटेशन की एक्सरसाइज है। भाई जब आप पहलवान बन गए तो फिर किसी पहलवान से लड़ो, उससे क्या दिक्कत है। भाई जब आपकी बॉडी बन गई तो आप तो फिर ओलंपिक खेलिए चाहे नेशनल खेलिए, आपको अवार्ड मिलना ही है। तो मेडिटेशन हर वक्त दिन भर मेडिटेटिव ही रहना है आपको, और उसके बारे में और अपन चर्चा करेंगे। सर हम मेडिटेशन करें या अदर, यू कैन, हमारे कोई भी हजारों टेक्निक्स दी हुई हैं, पर कोई भी टेक्निक अपना सकते हैं आप। बेसिकली मेडिटेशन का मतलब यही होता है, अब कोई भी क्रिया होश से की हुई, जैसे आप चल रहे हैं तो टांगों पे ध्यान दें, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप पे ध्यान दूं, और जब बोल रहे हैं तो शब्दावली पे ध्यान दें। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक बार होठों से निकला तो तीर गया, फिर आपके हाथ में नहीं है। और कम बोलने की प्रैक्टिस करें। जहां बिना बोले काम चल रहा है वहां बिना बोले काम करें, और जहां बोल के काम की बहुत जरूरत है तो जहां 15 लाइनों में बोलना है वहां 15 शब्दों में अपनी बात को खत्म करें। तो क्या है, ज्यादातर परेशानियां जो हैं, आप विश्वास करिए कि ये ज्यादा बोलने की वजह से ही होती है। अब आखिरी एक कहानी सुना के अपने सेशन को एंड करते हैं। रशिया के अंदर एक अपोजिशन लीडर था, और वो जो है उसके अपने जो प्रेसिडेंट के खिलाफ काफी ऊधम मचाता था। तो प्रेसिडेंट ने उसको फांसी की सजा कर दी। जब फांसी का दिन आया, उसको रस्सी पर टांग दिया गया। तो पता नहीं बाई लक हुआ कि वो रस्सी जो है टूट गई, वो उसको फांसी नहीं हुई। रशिया में ये प्रथा है कि अगर मान लो रस्सी टूट जाए और उसको जो है फांसी नहीं हुई, तो वो मान लेते हैं कि भगवान या कुदरत ये फांसी चाहती नहीं है, तो उसका जो है फांसी से जो है जो ऑर्डर था वो रिजेक्ट कर दिया प्रेसिडेंट ने। पर जैसे ही वो बाहर निकला, फिर उसने एक भाषण दिया, लोगों को इकट्ठा किया। देखो दोस्तों, मैं तो पहले ही कहता था कि ये प्रेसिडेंट खराब है, इसने पूरी इसकी क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब है। देखिए कि रस्सी भी इनने ऐसी बनाई कि जो टूट गई। ये खबर तुरंत प्रेसिडेंट के पास पहुंची, और विद इन 15 मिनट्स उसने दूसरा ऑर्डर पास कर दिया कि इसको फिर फांसी दी जाए और रस्सी ऐसी लगाई जाए कि अब टूटे नहीं। ये है ज्यादा बोलने का नतीजा। तो इसलिए कम बोलने से ही जान बच सकती है। जहां जरूरत हो वहां बोलें, ज्यादातर जहां साइलेंस से काम चले वहां साइलेंस में। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ये सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स में शामिल होंगे और उसको समझेंगे, तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और वार्म अप एक्सरसाइज के रूप में ये सो हम कोई भी टेक्निक लेकर एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 मिनट अपने साथ बैठें और रिलैक्स करें। अब आपके जो भी कमेंट्स हो, यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स। थैंक यू।